Hello, Eklavvians. Welcome back to your very own channel, Eklavvya. Guys, today is 1st January, so wishing you all a very happy and prosperous new year. I know that 2020 was not that good year. There were some problems, some troubles. So leaving everything behind, let's start this new year with a smiling faces and let's just pray to God that whatever problems and difficulties we faced in a previous year, that should not pop up in this coming year or upcoming years. So with this pray, let us start today's session. In previous session, guys, if you remember, we started with introduction to organic chemistry, and that was session number 1. In that session number 1, we have discussed 3 topics. The first topic was the historical background of organic chemistry. The second topic was the modern definition of organic chemistry, and the third topic was the reason why carbon forms a large number of compounds. The link for that session number 1 is given into the description. If you have not seen that session, I'll request you all to please go and visit that link and see that session as well. Again, as previous session was a theory session, this session is also a theory session. That means the only thing that you have to do is listen carefully. हाँ गाइस, ध्यान से सुनना है. एंड जैसे ही मैंने आपको कमिटमेंट दिया है कि मैं यहाँ पे जो भी चीज पढ़ाऊंगा उसके एक बहुत अच्छे और प्यारे नोट्स का मैं तुम्हें लिंक दूंगा, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दूंगा जहां से आप सारे नोट्स गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट सेशन नंबर 2. एंड एज यू ऑल नो दैट आवर एवरी सेशन विल बी स्टार्टिंग विद अ कोट. सो टुडेज कोट ऑफ द डे इज मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा ले. यस गाइस, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा ले. आप मेहनत करते जाओ गाइस, हार्ड वर्क करो, लेकिन दिखावा मत करो उस चीज का. यू आर वर्किंग फॉर समथिंग गुड, सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड. डजंट मैटर कि आपके आसपास वाले लोग क्या बोल रहे हैं. ठीक है, वो सारी चीजों पे जरा भी ध्यान नहीं देना. अपना अपना काम करना है, मेहनत करना है. एंड जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे, जिस दिन आपके स्कोर्स आएंगे और आप क्लियर कर जाओगे सारे ही एग्जामिनेशन जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बोर्ड्स हो, so trust me that marks itself will speak too many things. So with this motivational quote, let us start today's session. And in today's session, we'll be discussing 2 things. The first one is the general characteristics of an organic compound, and the second one will be the importance of organic compounds or organic chemistry in a day-to-day life. So let us start. As I said, लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे. Talking about general characteristics of organic chemistry, the first general characteristics that we should be knowing is the composition of organic compounds. The first characteristic that we should know is the composition. कॉम्पोजिशन याद रखने के लिए एक बहुत अच्छा सा शॉर्टकट हमने बना रखा है. ठीक है, दैट इज चिनॉस पैंट. चिनॉस, CHINOS. चिनॉस, आई होप आप लोगों को पता है कि एक पैंट का एक पर्टिकुलर थिंग है वो. ठीक है, चिनॉस इज नथिंग बट अ पैंट, फैशन वियर है. तो चिनॉस पैंट का हम ले रहे हैं सिर्फ पी, तो इट इज चिनॉस पैंट. ओके, अब ये चिनॉस पैंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, लेट अस डिस्कस. सी एज यूजुअल सबको पता होगा. ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर कार्बन. ठीक है, एंड जहां पे कार्बन है वहां पे एक चीज तो डेफिनेटली होने वाला है, वो है हाइड्रोजन. ना टॉकिंग अबाउट आई, बेसिकली इट इज आयोडीन, बट मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि हैलोजेंस होंगे, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो. ठीक है, सो बेसिकली आयोडीन, मैं यहाँ पे आयोडीन लिख तो रहा हूं, बट यहाँ पे मैं एक चीज और मार्क करूंगा, दैट इज हैलोजन. ठीक है, सो दैट इज हैलोजन. देन एन, एज यू ऑल नो दैट एन स्टैंड्स फॉर nitrogen. O stands for
oxygen, S stands for sulfur, and P stands for phosphorus. Okay, so these are the composition of an organic compound. What does that basically means? Ki if you do the analysis of elements present in organic compounds, what do you find? Okay, so the major composition that you will find is carbon and hydrogen. Then these are present in some traces. Okay, that is halogens. Here I have taken iodine just to make a short form. Then nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, etc. But yes, these are the some elements which are present in organic compounds. So in examination, if you want to write composition, so you can write an organic compound consists of the following elements, and you can mark this following elements, out of which carbon and hydrogen is found in a major amount. Okay, perfect. So that was all about the composition part. The first characteristics is composition. The next characteristics that we'll be discussing is the tetravalency of carbon in an organic compound. Okay, so let us start with the second characteristics. The second characteristic talks about tetravalency of carbon in organic compounds. Now, what does this basically mean? See, this word tetravalency, okay, this tetravalency word means that in any organic compound, carbon will always exist in 4 bonds. Means if carbon compounds are there, so each and every carbon compound consists of carbon which has at least 4 bonds. Okay, not less, not more. टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का आया हो, मतलब समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट ही मिलेगा, मतलब 4 बॉन्ड्स उसके बने होंगे. किस टाइप के बॉन्ड्स बनाता है, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं. सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. बट यस, एंड सेकेंड थिंग, 4 बॉन्ड्स है मतलब either it will not donate electron, it will not accept electron, it will share electron. So basically in organic compound, जितने भी organic compounds है, कार्बन उसमें सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, एंड ड्यू टू दिस कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, तो बेसिकली हम कोवैलेंट कंपाउंड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कह सकते हैं. ठीक है, सो due to this tetravalency, as I said, it forms 4 bonds, and that 4 bonds are 4 covalent bond, and that give rise to covalent compound. So covalent compound के कुछ characteristics होते हैं. ठीक है, covalent compounds, talking about the first characteristics, all covalent compounds have low melting and boiling point. So they have low melting point and boiling point. But yes guys, there is always an exception. We know that the melting of diamond, the melting and boiling point of diamond is very high. It's an covalent compound, but yes, melting and boiling point of diamond is very high. तो ऐसा नहीं है सबका, मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम डिस्कस करेंगे उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होंगे. ठीक है, and due to this low melting and boiling point, most of the organic compounds are volatile in nature. Now what do you mean by volatile in nature? ठीक है, this word volatile basically means an particular liquid which undergoes evaporation before its boiling point, or which changes its liquid state to gaseous state before its boiling point. The best example that I can give it to you is acetone or petrol. Acetone that is found in nail polish remover. Okay, उसको खोल के रख दो तो nail polish remover पूरा गायब हो जाएगा. ठीक है, so that is nothing but what acetone, which is volatile in nature. Second is petrol. ठीक है, एक one fine day you filled a petrol in your bike or car, and while coming you just lost जो नॉब था उसका वो आपने ओपन रख दिया. ठीक है, तो वो ओपन रखने की वजह से क्या होगा
धीरे 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 क्या हो जाएगा, पेट्रोल इवेपोरेट हो जाएगा। वोलेटाइल नेचर का है तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, एंड जब आप टंकी चेक करोगे तो वो पूरी खाली मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज एन इम्पोर्टेंस और दैट इज मीनिंग ऑफ व्हाट, वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, थर्ड, it is insoluble, it is insoluble in polar solvent, it is insoluble in polar solvent like water। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। जैसे बेस्ट एग्जांपल ऑयल एंड वाटर ले लो, जैसे ही तुम ऑयल एंड वाटर को मिक्स करोगे वो दो लेयर बना देते हैं, वो सोल्यूबल नहीं है, इट फॉर्म्स अ टू layer। So this is what I am trying to say, they are insoluble in polar solvent but soluble in non polar solvent, but it is soluble in non polar solvent, जिसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, then fourth point, since they are of covalent nature, they do not have free electrons, and due to that they are very bad conductors of heat and electricity, bad conductors of heat and electricity, means they do not conduct heat or electricity। ठीक है, now then the next is important point, they undergo molecular reaction, they undergo molecular reaction which is generally a slow reaction। ठीक है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, एंड दे आर जनरली व्हाट, अ स्लो रिएक्शन। इसको रिलेट तुम आयनिक रिएक्शन से कह सकते हो, जिसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। आयनिक रिएक्शन का वर्ड जिसमें हम आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या है, जिसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सो एंटायर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, तो हम बोलते हैं इट अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एंड दीज आर जनरली स्लो रिएक्शंस। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, they have a very characteristics, ठीक है, they have a characteristics odor, they have a characteristic odor। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल esters are having fragrance, esters basically have a fragrance, a sweet smell, okay, whereas phenol have a very phenolic odor, that is pungent odor। अमोनिया हैज अ पंजेंट ओडर, जैसे अमोनिया का एक पंजेंट ओडर होता है, वैसे ही फिनॉल का एक ओडर होता है, पंजेंट होता है, बट ये उसको हम कहते हैं फिनॉलिक ओडर। ठीक है, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिक, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ओडर होता है, मतलब उसका एक फ्रेग्रेंस होता है या उसका एक स्मेल होता है। ठीक है, सो दिस आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, देन talking about the third point, is nothing but action of heat, action of heat। now action of heat का बेसिक मतलब क्या होता है कि if you take an organic compound in a container और आप उसको हीट करो, मतलब उसका टेम्परेचर राइज करो, तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट दैट, व्हेनेवर यू टेक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हीट, अब जैसे उसको हीट करोगे इट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन। व्हाई इट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन, बिकॉज दे आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर एलिवेट करोगे, बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे ही वो क्या होते जाएंगे, अनस्टेबल होते जाएंगे, एंड दे विल डायरेक्टली अंडरगो डिकम्पोजिशन। सो आई विल मार्क दैट कि एक्शन ऑफ हीट, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, एंड ऑन इंक्रीजिंग और हीटिंग इट will undergo
an organic compound will undergo decomposition. Okay, and organic compounds are basically what? Organic compounds are basically what? Unstable at high temperatures, and they generally undergo decomposition. Okay, so that is the third characteristic. Fourth, combustion. Combustion. Talking about combustion, combustion means what? Burning in presence of oxygen. Okay, so if we'll talk about combustion and organic compounds, all the organic compounds are highly combustible, highly combustible in nature. मतलब फटाक से ये आग पकड़ लेंगे. The best example is your LPG, घर पे जो मम्मी खाना बनाने के लिए यूज करती है, या केरोसिन या पेट्रोल एंड ऑल दो स्टफ्स. ठीक है, सो दे आर हाईली कंबस्टिबल. आप जैसे ही जलाओगे फटाक से वो आग पकड़ लेगी. इवन पेपर, वुड, दे ऑल आर व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आप जैसे ही जलाते हो वैसे ही वो क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है. ठीक है, सो दैट व्हाट इट मीन्स हाईली कंबस्टिबल इन नेचर का मतलब क्या हो गया? बहुत जल्दी से जलना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस कंबर्शन वाला पार्ट, हाईली कंबस्टिबल इन नेचर के बाद जो पॉइंट आता है, इट बर्न्स विथ फर्स्ट सूटी फ्लेम. सूटी या येलो कलर का फ्लेम. इट बर्न्स विथ सूटी फ्लेम और येलो कलर फ्लेम. बेसिकली आपने बॉनफायर किया होगा, राइट? आई होप दैट कि सबने बॉनफायर किया है. लाइक इट्स बेसिकली क्या मतलब होता है? बीच में लकड़ियां जल रही है और हम आसपास सराउंड करके बैठे. ठंडी का सीजन चल रहा है तो बहुत से लोग बॉनफायर करते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे जो लकड़ियां जलती है, इट बर्न्स विथ अ येलो कलर. एक पिक्यूलियर कलर होता है फ्लेम का, दैट इज येलो कलर. एंड दैट येलो कलर विल ऑलवेज कम if an organic compound undergoes combustion in the limited supply of oxygen or less supply of oxygen. ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई अगर नहीं मिलेगा तो इट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन विथ अ सूटी फ्लेम. मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता एंड दैट रिजल्ट्स इन एशेस. अगर आपको याद है कि अगर आप लकड़ी के बहुत बड़े फ्लॉक को जलाओगे तो ऐश बहुत ज्यादा बच जाएगा, बट अगर आप उसी लकड़ी को एकदम तोड़ के एकदम फाइन पाउडर बना के उसको जलाओगे तो ऐश की मात्रा कम होगी एंड आपको येलो फ्लेम भी कम देखने मिलेगा. ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज पल्वराइजेशन, कन्वर्टिंग अ बिग फ्लॉक ऑफ वुड इनटू अ पाउडर फॉर्म. उसको हम पल्वराइजेशन कहते हैं. So that is the main thing. It burns with a sooty flame, and sooty flame कब होता है? In the limited supply of oxygen. Okay. It basically burns with a sooty, or yellow flame, and that happens due to limited or less supply of ऑक्सीजन. एंड सेकेंडली, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है घर पे, ठीक है, जब भी मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, ऑन दैट गैस स्टोव, तो जो गैस का जो बर्नर होता है, ठीक है, द फ्लेम इज येलो, सॉरी द फ्लेम इज ब्लू फ्लेम. आप लोग प्लीज जाके इस चीज को एक्सपीरियंस करना कि मम्मी अगर गैस पे खाना बना रही है तो जो बर्नर से फ्लेम निकल रहा है दैट इज ब्लू फ्लेम. ठीक है, उस ब्लू फ्लेम को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइज फ्लेम. ठीक है, इट इज नथिंग बट ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम. ओके, जिसको हम ब्लू फ्लेम भी कहते हैं. एंड ब्लू फ्लेम का रीजन ये है, इट बर्न्स विथ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. मतलब जितना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन उसको अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो इट बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम और ऑक्सीडाइज्ड flame. ठीक है, so it burns with oxidized or blue flame due to sufficient supply of
ऑक्सीजन। सफिशिएंट आप सफिशिएंट कह दो या कंप्लीट, कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में आप ये याद कर सकते हो कि इट इज इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ पे आप याद कर सकते हो इट इज इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन है तो बाय प्रोडक्ट्स विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में दोनों ही बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट कंप्लीट कंबशन में हमेशा 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 कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, दैट इज CO2। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप जलाओगे तो दो बाय प्रोडक्ट कंपल्सरी मिलते हैं, वन इज CO2 एंड वन इज H2O। तो हमेशा याद रखना, whenever you burn an organic compound, whenever an organic compound undergoes combustion, the byproducts are CO2 and H2O are byproducts। तो इसको मत भूलना गाइस, ठीक है। एटलीस्ट CO2 और H2O तो बनेगा ही, ठीक है। वाई? बिकॉज देयर इज इन प्रेजेंस ऑफ, अगर आपको याद है चिनॉस में हमने डिस्कस किया था, कार्बन भी प्रेजेंस है एंड हाइड्रोजन भी प्रेजेंस है, ठीक है। सो एटलीस्ट CO2 और H2O तो बनेगा। इसके अलावा अगर और भी प्रेजेंट है, समझो नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे या सल्फर के ऑक्साइड्स बनेंगे या फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स बनेंगे, बट यस ये दोनों जरूर बनेगा। सो व्हेनेवर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगो कंबशन, CO2 एंड H2O आर द बाय प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड। ठीक है, परफेक्ट। सो दैट इज नथिंग बट कंबशन वाले प्रोसेस में आपको ये सारे पॉइंटर्स लिखने हैं, ठीक है। देन कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिफ्थ वाले की अगर हम बात करें, सो दैट इज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज व्हाट? पॉलीमराइजेशन। टॉकिंग अबाउट पॉलीमराइजेशन, इट्स एन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। पॉली मीन्स मेनी, मर्स मीन्स यूनिट, दैट इज मेनी यूनिट व्हेन कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म्स अ पॉलीमर। आपको जस्ट एक आइडिया देता हूं, आई होप सबने ट्रेन देखी होगी। ट्रेन का अगर आप सिर्फ एक यूनिट लोगे, दैट इज नथिंग बट 1 कंपार्टमेंट लोगे, ठीक है, तो दैट 1 कंपार्टमेंट दैट इज नोन एज सिंगल यूनिट, और वो सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, उस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। ठीक है, एंड इसी सिंगल यूनिट को, मतलब एक कंपार्टमेंट के साथ आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे n नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स अगर आप ज्वाइंट कर दोगे, ठीक है, सो दैट विल फॉर्म समथिंग नोन एज पॉलीमर। That will form something known as polymer, and the process of conversion of monomer into polymer, the process of conversion of monomer into polymer is known as polymerization, is known as polymerization। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट पॉलीमराइजेशन। इसके ऊपर यस डिटेल में हम डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड में। पॉलीमर एक चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, वहां पे एक डिटेल डिस्कशन अपना आने वाला है। ओके फाइन। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आइसोमराइजेशन, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, दैट इज आइसोमराइजेशन। इफ यू रिमेम्बर लास्ट सेशन में ही हमने आइसोमराइजेशन या आइसोमेरिज्म डिस्कस किया है। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? इट इज दी व्हाट आर आइसोमर्स बेसिकली? Isomers are nothing but compound having same molecular formula but different structural formula are known as isomers, and the phenomena is known as isomerism, and conversion of one isomer to another isomer is known as what? Isomerization। तो इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, तो आई होप गाइस आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली होगी कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट मी रिवाइज दैट होल थिंग वंस अगेन। The first characteristics that we have discussed is composition। composition में हमने बोला है कि अपने को याद रखना है चिनॉस पैंट। ठीक है, चिनॉस पैंट stands for C stands for carbon, H stands for hydrogen, I stands for iodine, N stands for nitrogen, O stands for oxygen, S stands for sulfur and P stands for
फॉस्फोरस, ठीक है। तो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन हमने डिस्कस किया कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली इट मींस इट जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है एंड कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना के ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस थिंग, since it forms 4 bond, it will neither accept 4 electron, neither it will lose 4 electron, hence it shares the electron. So organic compounds में कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बना के ही रहता है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट नेचर आ जाता है, एंड ऑन दैट कोवैलेंट नेचर इट हैज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कोवैलेंट नेचर की वजह से, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, दैट मींस दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा वॉलेटाइल इन नेचर, तीसरा इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक पानी, ऑयल एंड वाटर का मैंने एक एग्जांपल दिया, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, पेट्रोल एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। देन ड्यू टू कोवैलेंट नेचर इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन इट अंडरगोज मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ओडर, एज आई सेड, फिनॉल का एक फिनॉलिक ओडर होता है। Ester is a sweet smelling compound. In that particular sense, it has a characteristics odor. Okay. Talking about the third characteristic, that is action of heat. As I said, an organic compound is unstable at high temperature and it will undergo decomposition if you heat it. Okay. So unstable on heating, it will undergo decomposition. Now, talking about combustion, combustion is a process in which you burn directly anything in presence of oxygen. So that is nothing but combustion. And organic compounds are highly combustible in nature. Matlab they catch fire very easily. So that's what I've written, highly combustible in nature. It burns with two kind of flames. The first one is sooty or yellow color flame, and the second one is oxidized or blue color flame. And दोनों का ही reason मैंने बता दिया। Sooty flame में burn कर रहा है मतलब incomplete combustion हो रहा है, और अगर ऑक्सीडाइज या ब्लू फ्लेम में बर्न कर रहा है मतलब कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो रहा है। दो इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन में हमेशा मिलेंगे, दैट इज CO2 एंड H2O, ठीक है। सेकेंड लास्ट वन वी हैव डिस्कस पॉलीमराइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मोनोमर इनटू अ पॉलीमर, दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। मोनोमर क्या होता है? सिंगल यूनिट। एज आई सेड, ट्रेन का एक कंपार्टमेंट देख लो तो दैट इज सिंगल यूनिट, और अगर आप पूरा ट्रेन देखोगे तो दैट इज अ पॉली यूनिट्स, ठीक है। एंड उस ट्रेन को हम बोल सकते हैं इट इज एन पॉलीमर ऑफ सिंगल कंपार्टमेंट, ठीक है। वैसे ही मोनोमर क्या होगा? मोनो मीन सिंगल, मर इज यूनिट, तो सिंगल यूनिट। और ऐसे बहुत सारी यूनिट को हम लाइन से जोड़ते जाएंगे तो इट विल बिकम पॉलीमर, दैट इज मेनी यूनिट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइसोमराइजेशन। तो आई होप गाइज एटलीस्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया होगा, और अगर अब एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप फ्रीली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। Now, coming upon to the next segment, fourth topic हमने discuss कर लिया, talking about the fifth one, that is what are the importance of organic chemistry in a day-to-day life. So this is importance of organic chemistry. See guys, इसके इंपॉर्टेंस बहुत सारे। बेसिकली वी ऑल आर सराउंडेड बाय पॉलीमर्स, ठीक है। एक टाइम था व्हेन वी वर इन स्टोन एज, ठीक है। फिर एक टाइम आया कि वी वर इन कॉपर एज, जहाँ पे स्टोन एज मतलब सारी ही चीजें कॉपर स्टोन्स की हुआ करती थी। देन एक टाइम आया कि कॉपर एज था, कॉपर एज बेसिकली सब कुछ कॉपर का हुआ करता था, कॉपर दैट इज मेटल। देन वी आर इन मेटालिक एज, जहाँ पे बहुत सारे चीजें मेटल से है, एंड सून एक ऐसा टाइम आने वाला है दैट विल बी इन पॉलीमर एरा, मतलब ज्यादा से ज्यादातर चीजें हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ पॉलीमर्स हो जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वी ऑल आर सराउंडेड विथ व्हाट, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एंड इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, जैसे कि मैंने कहा कि एक ऐसा एरा आएगा कि सबके सब पॉलीमर्स होंगे। वी आर ऑलरेडी दैट, मतलब ऑलमोस्ट हम हाफ द वे हो चुके हैं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद सर्टेन एग्जांपल्स। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज ब्रश आवर टीथ। वो जो ब्रश होता है दैट प्लास्टिक इज नथिंग बट अ पॉलीमर, ठीक है। प्लास्टिक एक फॉर्म ऑफ क्या है? पॉलीमर। कोलगेट जिस ट्यूब में रखा होता है अगेन इट्स इन प्लास्टिक विच इज नथिंग बट अ पॉलीमर,
ठीक है, जो शूज हम पहनते हैं दैट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ रबर, एंड रबर अगेन इट्स एन पार्ट ऑफ पॉलीमर, ठीक है। द क्लोथ्स दैट वी वेयर, ठीक है, जो मैंने कपड़े पहने, जो आपने कपड़े पहने, दे ऑल आर कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, इट्स नथिंग बट अ पॉलीमर। सो बेसिकली हम आसपास पॉलीमर से है, मार्कर ले लो, प्लास्टिक से बना है, पॉलीमर है, ठीक है। ये मेलामाइन शीट है, जो व्हाइट कलर की शीट आपको दिख रही है, ये मेलामाइन शीट है। मेलामाइन अगेन क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। सो बेसिकली वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी पॉलीमर्स। तो फर्स्ट थिंग जो मैं मार्क करूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज यूजफुल इन पॉलीमर इंडस्ट्री। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, पॉलीमर इंडस्ट्री। दूसरी चीज, whenever we feel sick, या कभी सर दुख रहा है, या आग दुख रहा है, या तबियत ठीक नहीं है, या खांसी है, जुकाम है, ठीक है, बेसिकली when we are not comfortable or when we are suffering from some disease, we take medicines, right? एक particular medicines हम लेते हैं prescribed by the physicians, ठीक है। that medicine again it's made up of what, an organic compound, ठीक है। इस चीज को एक्सप्लेन करने का guys बहुत मस्त तरीका है। मान लो खेल रहे हो आप, और खेलते खेलते आपको लग गई एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, या खराश आ गई, या जो स्किन है वो टर्न्ड अप हो गया, खून निकल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप घर पे आओगे तो मम्मी क्या उस पर नमक लगाने वाली है? नहीं लगाएगी। शी विल डेफिनेटली नॉट पुट सॉल्ट ऑन इट, बिकॉज सॉल्ट इज व्हाट, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लगाओगे तो वो और ठीक नहीं होगा, इट विल मेक योर पेन वर्स। बट यस, जब भी आपको लग जाए, या कुछ चीजें जल जाए कहीं पे, या कहीं पे स्क्रैच आ जाए, तो whenever you come you use some ointments which are basically what, an organic compound। सर दुख रहा है, आपने एस्पिरिन लिया, अगेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एस्पिरिन में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसका प्रिपरेशन अपने सिलेबस में है, ठीक है। सो इस तरह के जितने भी मेडिसिन है, सर दुखे, पेट दुखे, वॉमिटिंग हो, पेन किलर्स हो गए, एंटीसेप्टिक्स हो गए, एनाल्जेसिक्स हो गए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गए, दे ऑल आर बेसिकली व्हाट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर, that where the importance of organic chemistry lies is pharmaceutical, that is pharma industry, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री हो गई। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, थर्ड वन इज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। यूरिया, यू रिमेंबर द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, दैट वाज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। यूरिया इज नथिंग बट अ फर्टिलाइजर। सो ठीक है, ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जो है, इट इज फॉर्म ऑफ व्हाट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड सिंस इट इज इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, fertilizer industries are also application of what, an organic chemistry. So the third thing that I am going to mark is fertilizers, ठीक है। फोर्थ वन रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, दैट इज एग्रीकल्चर इटसेल्फ, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। आई होप यू नो दैट इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, अगेन गैमेक्सेन करके एक कंपाउंड है जिसका प्रिपरेशन हम देखेंगे, इट इज एन वेरी गुड इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। सो ये वाली चीजें भी आगे डिस्कशन में आने वाली है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। सो इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। Paper and pulp industry, basically it is that industry where either papers are manufactured or papers are recycled, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे पेपर या तो बनता है या तो रिसाइकल किया जाता है, एंड वी नो दैट पेपर इज इन फॉर्म ऑफ व्हाट, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को आर्टिफिशियली मॉडिफाई करके, ठीक है, वी यूज एज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, पेपर। सो द नेक्स्ट वन इज यस, फिफ्थ आई कैन मार्क एज पेपर एंड pulp industry, it is paper and pulp industry, okay, so it is paper and pulp industry. Next one, textile industry, basically cloths, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, is textile industry,
Then talking about seventh one, color industry, paint industry, dyes industry. Basically all these colors, ठीक है, nowadays all colors are basically are organic colors. ठीक है, जितने भी हम पेंट्स यूज करते हैं, चाहे वो नेरोलैक पेंट हो या एशियन पेंट हो या कोई भी कंपनी का पेंट हो, ठीक है, दे ऑल आर ट्राइंग टू मेक व्हाट एन ऑर्गेनिक पेंट्स, एंड ऐसे पेंट्स दिस आर इको फ्रेंडली पेंट्स. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज पेंट एंड डाई इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो अगर एग्जाम्स में आपको पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कोई 3-4 पॉइंट को आप बस अपने मन से इलैबोरेट कर देना एंड आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितने भी मार्क्स का आएगा आपको वो मिल जाएंगे. ठीक है, बट यस इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट मार्क्स नहीं है, बट आई होप आपको समझा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कितना वास्ट है. दीज आर ओनली सम इंडस्ट्री विच आई हैव हाइलाइटेड, जो बहुत ज्यादा हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, बट यही है ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं. बट यस इतनी चीजें काफी हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए. सो विद दिस गाइज आई होप दैट कि आपको आज का सेशन दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको दोनों ही चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होंगी. ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा. ठीक है, सो प्लीज कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन. आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड ये शेयर करना ना भूलें. अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ओपन फॉर सजेशंस. ठीक है, एज यूजुअल आपको पता है कि सिंस आई स्टार्टेड न्यू ऑन यूट्यूब, सो आई विल बी नीडिंग योर इनपुट कि व्हाट आर द थिंग्स टू बी चेंज. टिल देन गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए एंड यस प्लीज मेक श्योर करिए कि आज से आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे और जो भी ड्रीम्स है आप उसको अचीव करोगे. टिल देन गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग.